Okay, so we'll start again with properties of all the waves because it is important. जब आप 12th में सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ोगे तब ये चीजें नॉर्मली पता नहीं होती है, विच इज नॉट गुड. एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम थ्रू विच द वेव इज पासिंग. मतलब हम वेव कैसे जनरेट करते थे? वी टुक अ स्ट्रिंग एंड हम इस स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाएंगे. तो व्हेन वी वाइब्रेट इट you will get such a structure here. So each particle on the string is basically displaced from its equilibrium or mean position. Mean position, equilibrium position मतलब forces are balanced. तो जो maximum displacement होगा like this or here or in fact here also, this maximum displacement is called as amplitude of the wave. Right? Good. तो ये सिंपल सा डेफिनेशन था. देन वी नीड टू डिफाइन व्हाट इज वेवलेंथ. अब वेवलेंथ आप ट्रांसवर्स वेव के लिए अलग से और लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए अलग से डिफाइन कर सकते हो. ट्रांसवर्स वेव के केस में आप बोल सकते हो दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. या फिर अगर आप लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर रहे हो तो एज यू नो, longitudinal wave में you have compressions and rarefactions. Compressions are the compression is the place where density of air is more and rarefaction is that place where density of air is less. Rarefaction में density कम होती है, compression में ज़्यादा होती है, right? तो distance between two consecutive compressions or rarefactions is called as wavelength. अब इशू क्या है यहाँ पे? अब अगर मुझे पता ही नहीं है कौन से वेव की बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रांसवर्स की बात कर रहे हैं या लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहे हैं या फिर इन जनरल दो अलग अलग वेव के लिए मुझे अलग अलग डेफिनेशन नहीं चाहिए वेवलेंथ का. तो व्हाट वी से इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, टू कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स विच आर इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. अब सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अब ये एक पार्टिकल ए है and you have a particle B and you have a particle C here. So same state of vibration is decided by three factors. पहला, बेसिकली दो ही इंपॉर्टेंट है, तीसरा बाद में आएंगे. पहला, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन. दूसरा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. अब अगर मैं ए और बी पार्टिकल की बात करता हूं तो ए पार्टिकल भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, बी भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, लेकिन ए पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में है और बी का नेगेटिव में है. या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो दैट ए पार्टिकल विल गो डाउन नाउ, मतलब वेलोसिटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड बी इन द नेक्स्ट इंस्टेंट विल गो अप. So they are not in the same state of vibration, right? So wavelength is defined as the distance between two consecutive particles which are in the same state of vibration. अगर मैं C और A की बात करूंगा तो then they are in the same state of vibration. So the distance between A and C is called as wavelength. So to define wavelength in general, you can just say that the distance between two consecutive particles which are in the same state of vibration is called as wavelength. तो ये आप longitudinal wave और transverse wave के लिए एक general definition बना दिया आपने. So you don't have to define wavelength separately for longitudinal and for transverse wave, right? So we'll keep it as simple as we can. तीसरा हमने देखा था, third common property was period. Period is nothing but the time taken by a particle to complete one oscillation, correct? That is period. Then you define, depending on period, frequency,
फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड। पर इसका मतलब क्या होता है? इट टेल्स यू हाउ मेनी number of vibrations a particle is performing in 1 second per second या फिर number of cycles passing through a point per second। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट P लेता हूं, इस P पॉइंट में से 1 सेकेंड में कितने वेव्स पास हुए, दैट इज ऑल्सो फ्रीक्वेंसी। So you can define frequency in 3 different ways. Reciprocal of time period is frequency, or you can say that number of vibrations performed by the particle in 1 second या per unit time is frequency, or the number of cycles मतलब waves passing through a given point on the string per second is frequency। तो अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। Then we saw something called as double periodicity। What do we mean by double periodicity? दो, एक तो होता है पीरियोडिक इन टाइम, एक होता है पीरियोडिक इन स्पेस। पीरियोडिक इन टाइम का मतलब यह है कि हर एक पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वापस उसी स्टेट में आ गया। मतलब दैट फॉर एग्जांपल अभी ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वापस उसी पोजीशन पे जाएगा, राइट? सो लोकेशन इज नॉट चेंजिंग, द पार्टिकल इज उसी लोकेशन पे है और इट इज वाइब्रेटिंग एंड कमिंग बैक टू दैट पर्टिकुलर पोजीशन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सिर्फ ए के लिए होगा क्या? नहीं, फॉर ईच पार्टिकल। तो ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। द वेव दैट आई एम शोइंग हियर, इट इज अ फोटो मतलब स्नैपशॉट टेकन एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये हमने एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे देखा, तब ए मैक्सिमम पे था, तब पी मीन पोजीशन पे था, राइट? बट विथ टाइम ए भी यहाँ पे आएगा और ये जो P है ये भी ऊपर या नीचे जाएगा। So all these particles are vibrating, correct? So after equal interval of time they will go back to their original position। Original position मतलब as हमने जब मेजर करना चालू किया तब से, right? तो periodic in time का मतलब क्या? All the particles of the medium through which the wave is passing, they are they are coming back to their original position after equal interval of time, correct? Motion is called as periodic। डबल पीरियोडिसिटी मतलब अब टाइम का हो गया, अब हम स्पेस में देखेंगे आफ्टर इक्वल डिस्टेंसेस। हर बार लैम्बडा के बाद वापस से आपको वही स्ट्रक्चर दिखेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक इन स्पेस, राइट? तो वेव has double periodicity, be it transverse, be it longitudinal। longitudinal के लिए भी compression, फिर लैम्बडा के बाद compression, फिर लैम्बडा के बाद compression। So it is periodic in space also। Good। Then we saw what is wave velocity। Wave velocity is nothing but distance covered by a wave per unit time। और अगर मैं बोलता हूं कि वन टाइम पीरियड में, in one time period, in time period t मतलब the distance covered by wave is lambda, one wavelength, so this is equal to n lambda। so this is velocity of wave। okay, यहां तक हमारा लास्ट सेशन में हुआ था। okay, so now we want to define something called as phase and phase difference। right, अब फेज और फेज डिफरेंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ अ वेव एंड देन विल टॉक अबाउट व्हाट इज फेज एंड फेज डिफरेंस। ओके, मोर और लेस गुड। राइट, अब ऐसा है, आई मार्क सम पॉइंट एंड ट्राई टू कीप नोटेशंस ऑफ योर बुक। प्रोबेबली छोड़ो, लेट इट बी, आई विल जस्ट गिव नेम्स whatever I want। A, B, let us say C, let us take a point over here D, and
I will call this point C, B, this point over here E, F, G, and so on so forth. I need some points to tell you what is phase. So as I told you कि at any instant of time not all the particles are in the same state of vibration. सारे के सारे particles same state of vibration में है क्या? नहीं होंगे तो wave ही नहीं बनने वाला है. You will see a straight line like this. ये जो black line है वैसे दिखेगा if they are all in the same state, right? अब particle कौन से state में है ये बताने के लिए we use angles and that angle is called as phase or phase angle. इसके लिए दो चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी टू टेल एग्जैक्टली इन विच स्टेट द पार्टिकल इज. वही दो चीजें मैंने पहले बताया था, एक्चुअली 3 ईयर. पहला था डिस्प्लेसमेंट, हाउ मच इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन. दूसरा था डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तीसरा इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, विच इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल. क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैंने इस साइड से वेव जनरेट किया है ऑब्वियसली तो G पे वेव पहले पहुंचा, राइट, A पे वेव बाद में पहुंचा. मतलब भले ही इवन इफ दे आर इन द सेम स्टेट बट it is possible and it is not only possible, it is actually what is happening. G ने compared to A ज्यादा वाइब्रेशन परफॉर्म की है क्योंकि G पे वेव पहले पहुंचा था, राइट. G पे वेव पहले पहुंचा था तो G पहले मैक्सिमम पे गया था. अब वेव आगे गया तो G मीन पे आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, उस तब जाके A पे वेव पहुंचा है. इसका मतलब G पॉइंट का अगर दो ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ है तो A पॉइंट का एक ही हुआ है. इमेजिन आप अगर इस एंड से वेव को जनरेट कर रहे हो, G पॉइंट यहां पे था तो पहले वेव G पे पहुंचा और इस G पॉइंट को ऊपर लेके गया वेव, राइट. फिर वेव आगे गया तो G पॉइंट तो वापस नीचे आएगा, राइट. फिर वेव जैसे जैसे प्रोग्रेस हो रहा है वैसे वैसे G नीचे गया एंड देन अगेन वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड पे आ गया. इट मींस A का पहला वाइब्रेशन है और G का दूसरा वाइब्रेशन है, राइट. तो फेज मतलब जब मैं एंगल मेजर करूंगा तो मुझे ये चीज कंसिडर करनी पड़ेगी कि विच नंबर ऑफ ऑसिलेशन द पार्टिकल इज इन, करेक्ट. ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एज आई एम शोइंग सम पॉइंट्स हियर, अब डेफिनेटली ए का डिस्प्लेसमेंट अलग है, सी का अलग है, डी का अलग है. तो क्या मैं हर बार बोलूंगा क्या ए पार्टिकल इज at the maximum displacement during positive half cycle, D point is in maximum displacement during negative half cycle. हम क्या एक एक पॉइंट का बताते बैठेंगे, फिर ऐसा बोलेंगे G point is at maximum displacement in its second vibration. तो what we do is हम ऐसा लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, बोलते हैं ठीक है लेट्स मेजर एंगल, राइट, एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एज फेज एंगल. तो इफ आई टॉक अबाउट ए पॉइंट एंड जी पॉइंट, अगर हम ए और जी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ए और जी सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है. दोनों के दोनों मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, दोनों के दोनों नेक्स्ट इंस्टेंट पे नीचे ही जाने वाले हैं. लेकिन जी सेकेंड ऑसिलेशन में और ए फर्स्ट ऑसिलेशन में. गुड. इसका मतलब दोनों में डिफरेंस है इन एंगल. कितना डिफरेंस है इसको समझने के अलग अलग तरीके होते हैं. If you know trigonometry, you can say both differ by 2 pi. If you don't know trigonometry, doesn't matter. हम क्या करेंगे फिर इसको easy language में लेके जाएंगे, the language that you will understand. First of all, you need to know कि आप वेव को एक सर्कल से कंपेयर कर सकते हो. क्यों कर सकते हैं? वेव में क्या है? वेव में क्या है? क्रेस्ट एंड ट्रफ. टॉप मोस्ट पॉइंट इज क्रेस्ट, बॉटम मोस्ट इज ट्रफ. तो फिर सर्कल में भी ऐसा अज्यूम कर सकता हूं, टॉप मोस्ट इज क्रेस्ट, बॉटम मोस्ट इज ट्रफ, करेक्ट.
और अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स सीखा ही होगा, आप हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेजर करते हो एंड यू टेक इट पॉजिटिव। गुड। मेरे पास एक स्ट्रिंग है, राइट, देयर इज अ स्ट्रिंग हियर, देयर इज सम पॉइंट ए हियर ऑन, इट इज एट मीन पोजीशन। गुड। मतलब ये इफ आई मार्क इट ऑन द सर्कल, वो पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि वो मीन पे था। मीन मतलब x इक्वल टू 0 था, है ना, ये x में मीन मतलब x इक्वल टू 0। जब ये पार्टिकल मैक्सिमम पे जाएगा, मैक्सिमम पे जाएगा मतलब y की वैल्यू मैक्सिमम, इसका मतलब अगर सर्कल पे देखूंगा तो ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, राइट। कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री। सो व्हेन अ पार्टिकल इज एट इट्स मतलब एम्पलीट्यूड एक्सट्रीम पोजीशन, इट इज मेकिंग एंगल ऑफ पाई बाई 2 रेडियंस। तो फेज एंगल कितना हुआ, पाई बाई 2, करेक्ट। मैं डिलीट होने के बाद भी ले रहा हूं, 12th का बेसिक है, ये लगेगा। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, इफ यू अंडरस्टैंड दिस, ओरली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो पार्टिकल ने मीन से स्टार्ट किया, पॉजिटिव पॉजिटिव में गया ना, y पॉजिटिव है ना यहाँ पे, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे कितना एंगल बना, 90 पाई बाय 2। अब वो वापस नीचे आ रहा है, राइट, तो इट इज कमिंग बैक। कमिंग बैक मतलब इट इज गोइंग हियर, मतलब वापस से मीन पे आया, लेकिन हाफ सर्कल कंप्लीट होने के बाद हाउ मच इज एंगल, 180। गुड, राइट। अब वो जाएगा नीचे, मतलब वो आ गया यहाँ पे 270 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 270, 90। मीन से पॉजिटिव y, फिर नेगेटिव x 180, फिर नेगेटिव y और 90, 180 प्लस 90 270, राइट। अब वापस से वो मीन पे आया, कितना, 360 मतलब 2 पाई। इसको एक्चुअली 12th में उल्टा बताया है। उल्टा कैसे बताया है, वो बोलते हैं, ठीक है, मतलब इट इज एक्सेप्टेबल, नथिंग रॉन्ग इन दैट। वो बोलते हैं कि कंसीडर अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और आपने यूसीएम सीखा है, यूसीएम इज द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। वेलोसिटी बोलना नहीं, वेलोसिटी एग्जाम में लिखोगे 0 रख दूंगा मैं, बाकी सब करेक्ट होगा चलेगा। वेलोसिटी नहीं, क्यों, क्योंकि यूसीएम में हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी टेंजेंट होता है, तो वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसीलिए वहां पे एक्सेलरेशन था, जिसको आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला था। गुड। जैसे जैसे ये पार्टिकल अपने मोशन में आगे जाएगा, इसका शैडो जो है, इसका शैडो क्या करेगा, इसका शैडो वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा, है ना। ए पॉइंट पे था पार्टिकल तो शैडो भी ए पे था, जब बी पे था तो शैडो कहाँ आया, मीन पे, जब सी पे था तो शैडो भी सी पे है, जब डी पे है तो शैडो वापस से मीन पे आया, और वापस से सर्कल, पार्टिकल तो सर्कल में घूम रहा है, लेकिन उसका शैडो मतलब प्रोजेक्शन बोलते हैं उसको, इट इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब वाइब्रेशन, राइट। गुड। तो व्हाई डिड आई टेल यू दिस, मैं इसलिए बता रहा हूं, इफ यू सी दिस डायग्राम नाउ, एज आई टोल्ड यू, कि अगर आप ए और जी पॉइंट को कंपेयर कर रहे हो, राइट, इफ द वेव स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, या फिर ओ से लोगे, मान लो ओ से लेते हैं, ओ से अगर वेव स्टार्ट हुआ है तो वो पहले कहां पे गया, ए पे, फिर बाद में गया जी पे, राइट। तो जी के लिए फेज एंगल पाई बाय 2 होगा, क्योंकि जी कहां पे है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है, ए भी एक्सट्रीम पे है, लेकिन ए एक राउंड कंप्लीट करने के बाद दूसरी साइकिल में है अब, तो ए के लिए एंगल कितना होगा, 2 पाई प्लस 90, मतलब 2 पाई प्लस पाई बाय 2, राइट, करेक्ट। तो ए और जी पॉइंट में फेज का डिफरेंस मतलब एंगल का डिफरेंस कितना है,
नहीं, हाउ मच, wait. If a particle is at extreme position in the first vibration, how much angle? 90 pi by 2. If the particle is at extreme, positive extreme, in the second cycle, how much angle? 90 plus 360, मतलब 2 पाई प्लस पाई बाय 2. एक का एंगल 2 पाई प्लस पाई बाय 2 है, एक का एंगल पाई बाय 2 है. हाउ मच इज द डिफरेंस? 2 पाई. दैट इज कॉल्ड एज फेज डिफरेंस. सिंपल, राइट? तो हमने क्या किया, हमने स्टेट ऑफ वाइब्रेशन को एंगल से डिनोट किया, बिकॉज आगे जाके ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज पूरी पूरी रस्सी पे इफ आई हैव अ बिग स्ट्रिंग, तो ये जो वेव है ये तो इट विल बी लाइक चलता रहेगा. फिर अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है सम पॉइंट x, तो x पॉइंट मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, x पॉइंट इज इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन एज कंपेयर टू a, बट इट इज लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा 4 लैम्बडा अवे. ऐसा बोलेंगे हम लोग? नहीं, हम क्या बोलेंगे, देयर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन बट दे डिफर इन फेस. बात करता हूँ. हाउ मच फेज डिफरेंस वी डोंट केयर, बट दे डिफर इन फेस, बट दे आर इन सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. मतलब समझ लेना कि फेज डिफरेंस कितना होगा, या 2 पाई होगा, या 4 पाई होगा, या 6 पाई होगा, या 8 पाई होगा. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा. क्यों? वापस से वही, ए पे पहले आया वेव, राइट, फिर कहां गया, जी पे. इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना? 2 पाई. फिर जी से यहां पे आया, कितना डिफरेंस? 2 पाई. फिर कितना डिफरेंस? 2 पाई. बट एक्स एंड ए, दे आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन बट दे डिफर इन फेज. तो इन शॉर्ट, अगर आप सम अप करने के लिए बोलोगे, एक सिंपल स्टेटमेंट में बोलना है, तो आई विल से फेज इज नथिंग बट द एंगल that a particular point makes with respect to the origin. The line joining origin to that point, the angle between that line and the x-axis is phase. In short, क्यों चाहिए? क्योंकि हमको पता है there can be n number of points which are in the same state of vibration. जैसे a, g, x, they are in same state of vibration, right? So if they're in same state of vibration, what is difference? Some point is in first oscillation, कोई दूसरे में है, कोई तीसरे में है, कोई चौथे में, but still they are in the same state. So there is difference of phase, right? Clear? तो this is called as phase difference. Easy था ये, nothing difficult. वापस एक बार देख लेते हैं. फेज और फेज डिफरेंस का मतलब क्या है. फेज जब डिफाइन करोगे तो एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं. वी आर नॉट टेकिंग 2 पॉइंट्स, वी आर नॉट टेकिंग 3 पॉइंट्स, हम लोग एक ही सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हैं. एक वे पे कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जैसे ए एंड जी, एंड दे आर इन द एट अ स्टेट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. बी है जो मीन पे है, सी है जो बीच में है, नॉट मैक्सिमम नॉट मिनिमम, इट इज समवेयर. करेक्ट? तो ये अलग अलग पॉइंट अलग अलग स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में है, राइट? स्टेट ऑफ वाइब्रेशन मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, एंड इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन. करेक्ट? तो किसी भी एक पॉइंट पे, वेव के एक पॉइंट पे, what is the angle it is making with respect to origin, that is called as phase. मैं सिंगल पार्टिकल की बात कर रहा था. सिंगल पार्टिकल के लिए हम बोलेंगे फेज या फिर फेज एंगल. क्लियर? तो एज यू ऑलरेडी नो, जब पार्टिकल मीन पे है मतलब ओ पे है, जीरो फेज एंगल. जब वो पार्टिकल ए पे है तो पाई बाय 2, 180, 270, 360, 360 प्लस 90, 450, प्लस 90, 540, प्लस 90, सो ऑन सो फोर्थ, राइट? तो मुझे दो पॉइंट्स का एंगल का डिफरेंस देखना है तो उसको बोलूंगा फेज डिफरेंस. कोई भी दो पॉइंट उठाओ, उन दोनों का फेज को सब्ट्रैक्ट करो, दैट इज फेज डिफरेंस. अगर मैं ए और जी की बात कर रहा हूं तो 2 पाई का फेज डिफरेंस, 360 का फेज डिफरेंस, क्योंकि एक 90 डिग्री फेज पे है, दूसरा 450 पे है, सब्ट्रैक्ट करो, राइट? अगर मैं यहाँ पे और एक वेव लेता आगे जाके सम पॉइंट h, तो a और h में डिफरेंस होता है 2 पाई प्लस 2 पाई.
4 पाई मतलब 720 डिग्रीज का, बट दे आर स्टिल इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन. गुड. गुड. डन. तो इतना आपको पता होना चाहिए फेज एंड फेज डिफरेंस के बारे में. दिस इज ऑल यू शुड नो. इज इट क्लियर? राइट. गुड. नेक्स्ट टॉपिक. Next topic is progressive wave. It is just like you're progressing in your studies. तो वैसे ही progressive wave मतलब it will progress, it will move continuously in a given direction. तो progressive wave is a wave which is traveling continuously in a given direction, right? So इतना बताना sufficient है. A wave which is traveling continuously in a given direction is progressive wave. But what are consequences of it? अगर एक वेव ट्रेवल करते जा रहा है मतलब उस स्ट्रिंग का हर एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, मतलब वाइब्रेशन परफॉर्म कर रहा है. सो अ प्रोग्रेसिव वेव is a wave which is traveling continuously in a given direction, and hence all the particles of that medium are performing vibration. Good. This is all you should know before we move ahead to transverse wave and its properties. Transverse wave and longitudinal wave and उसके properties. अभी obviously ये जो wave था ये transverse wave है, और हमने last session में भी देखा कि transverse wave का मतलब क्या होता है. Transverse wave का मतलब ये होता है कि particle का जो vibration का direction है और wave का जो propagation का direction है, they are mutually perpendicular. Particle is vibrating along y-axis and wave is propagating along x-axis. So if the direction of vibration of particles of a medium, if they are perpendicular to, normal to direction of propagation, then the wave is called as transverse wave. Simple. Right. Properties are really interesting. Properties मतलब क्या? Properties मतलब जो कुछ भी हमने अभी तक wave के बारे में बोला है, one by one we need to recall. Okay. Please close your textbooks. We don't need it. Okay. Then सबसे पहला property तो आपने अभी बता दिया. Whenever there is a wave, whenever there is a transverse wave, the particles of the medium vibrate perpendicular to direction of propagation of wave. दूसरा स्ट्रक्चर से आप बता सकते हो. आपने बताया था ये क्रेस्ट है, ये ट्रफ है, ये क्रेस्ट है, अगेन ट्रफ है, राइट. तो दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि whenever a transverse wave passes through a medium, the medium is divided into alternate crest and trough, right. ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया. And we are not writing today, okay, because this is not included for this year, but it is important. तो मैं notes में upload कर दूंगा ये सब. Then how did we define wavelength here? The distance between two consecutive crests and nahi, the distance between two consecutive crests or two consecutive trough is called as wavelength, or the distance between two particles, consecutive particles which are at positive extreme displacement और नेगेटिव एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्रेस्ट और ट्रफ, राइट, इज कॉल्ड एज वेवलेंथ. देन क्रेस्ट और ट्रफ क्या कर रहे हैं? दे आर ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, राइट. देन हमको ये देखना है कि किस मीडियम में ट्रांसवर्स वेव पास हो सकता है, राइट. तो ट्रांसवर्स वेव कैन पास through solids and on the surface of liquids, right. तो solids में तो रस्सी क्या थी? रस्सी solid ही था ना, string was a solid, okay. And
ये चैप्टर स्टार्ट किया था मैंने बाय ड्रॉपिंग अ स्टोन ऑन वाटर। तो जो रिपल्स जनरेट होते हैं दे आर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब ट्रांसवर्स वेव कैन ओनली पास थ्रू सॉलिड्स और ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ऑन द सरफेस। Inside liquid, no. In the gas, no. Because there you can have only longitudinal waves. Okay? Right. Good. ऐसा क्यों होता है? It's part of next year. We'll see that. कि ऐसा क्यों होता है? Because it's something to do with कौन से मीडियम से कहाँ जा रहा है, मोमेंटम ट्रांसफर कितना हो रहा है, so on so forth. We'll see later. Then we need to think कि जब एक मीडियम से वेव पास होगा तो क्या उस मीडियम के प्रॉपर्टीज चेंज होंगे? उस मीडियम के प्रॉपर्टी मतलब प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर चेंज होंगे क्या? तो व्हेनेवर अ ट्रांसवर्स वेव मूव्स थ्रू अ मीडियम, pressure and density of that medium remains same, it does not change, but longitudinal में change होता है, इसलिए तो compression और rarefaction generate होते हैं, right? So whenever, अभी जैसे यहाँ पे wave बताया मैंने, अभी I'll draw some, अभी मेरे पास अगर एक string है, मान लो I have string, और ये string को मैं डिटेल में देख रहा हूँ, so माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे हैं हम लोग। तो ये एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे पार्टिकल्स है। तो जब ट्रांसवर्स वेव जाएगा सिर्फ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, पार्टिकल्स दे आर नॉट कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, राइट? नॉट कमिंग क्लोजर मतलब डेंसिटी इज कांस्टेंट एंड प्रेशर इज आल्सो कांस्टेंट। सो व्हेनेवर ट्रांसवर्स वेव passes through a medium, pressure and density remain same, मतलब properties of the medium they remain same, right? Good. Then यही कुछ लैंग्वेज में लिखा होगा बुक में, आई डोंट नो। देन अब इसमें दो टाइप आते हैं, वो भी पार्ट ऑफ 12th है, बट आई विल गिव यू सम हिंट। अब इफ आई हैव अ स्ट्रिंग, तो हम स्ट्रिंग को अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट करवा सकते हैं। आई कैन मेक दिस स्ट्रिंग वाइब्रेट इन दिस पर्टिकुलर प्लेन, let us say this is x axis, this is y axis, so vibrations are in xy plane, right? And I can also make this string vibrate like this। मान लेते हैं कि ये z एक्सिस है, तो vibrations are in xz plane। I can make them move however I want। मैं उसको ऐसा वाइब्रेट करवा सकता हूँ, मैं उसको ऐसा वाइब्रेट करवा सकता हूँ। I can vibrate like this or like this। Okay, so whenever the vibrations of transverse wave are concentrated only in one plane, like this xy plane, then the wave is said to be polarized। और यही फेनोमेना यूज होता है आपके सनग्लासेस में, क्योंकि सनग्लासेस में मतलब बेसिकली द लाइट कमिंग फ्रॉम सन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो अपनी मर्जी से वाइब्रेट होगा ना, कि आपसे पूछ के होगा ऐसा होना है कि ऐसा होना है, राइट? तो ईच वेव विल वाइब्रेट इन इट्स ओन प्लेन, तो इसका मतलब वो स्टार जैसा स्ट्रक्चर बनता है। तो वाइब्रेशंस आर इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स, इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। तो इफ द वाइब्रेशंस आर of transverse wave, because electromagnetic is also transverse wave, but electromagnetic is not a mechanical wave, क्योंकि मैकेनिकल वेव को मीडियम लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम नहीं लगता है, वो भी ट्रांसवर्स है, ये भी ट्रांसवर्स है, राइट? सो इफ द वाइब्रेशंस आर इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, यूपीएल, और वो लाइट है, राइट? तो सिर्फ वेव बोलोगे तो अनपोलराइज्ड वेव। गुड। अभी सन ग्लासेस क्या करते हैं फिर? सन ग्लासेस ऐसा काम करते हैं, यू आर नॉट अलाउड टू कम, यू आर नॉट अलाउड टू कम, यू आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू कम, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन को पास करते हैं, मतलब लाइट का इंटेंसिटी कम करते हैं। तो व्हाट डज अ सनग्लास डू फॉर यू? टू कन्वर्ट अनपोलराइज्ड लाइट इनटू पोलराइज्ड लाइट, इसलिए उसको पोलराइजर भी बोलते हैं। ओके, इफ यू बाय गुड क्वालिटी सनग्लास, उस पर लिखा होता है पोलराइजर, और ये भी लिखा होता है कि कितने एक्सटेंट तक पोलराइज करता है वो।
Good. So transverse wave, if the vibrations of a transverse wave are concentrated only in one plane, such transverse wave is called as polarized transverse wave, right? Good. Then last and important thing, सबसे important ये है, the medium through which transverse wave is passing must be elastic in nature. हमने elasticity पढ़ा है. What is the meaning of elasticity? That is important. इसका मतलब the property of a medium to regain its original form, shape हो, size हो, volume हो, length हो, जो भी हो, original form, that is called as elasticity. अब imagine करो, हमारे पास एक रस्सी था, हमने एक जर्क दिया और बाद में क्या हुआ कि वो उसी जगह पे अटक गया, तो it will not be a progressive wave, right? इसका मतलब क्या, this medium is not capable of transferring energy from one point to another, right? तो इलास्टिसिटी होना चाहिए, क्योंकि बाद में ये पॉइंट वापस अपने जगह पे वापस आना चाहिए, फिर ये पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर ये जो पॉइंट है ये अपनी जगह पे वापस आएगा, फिर ये नीचे जाएगा, मतलब द वेव शुड कंटिन्यूअसली ट्रांसफर एनर्जी, और वो तभी पॉसिबल है जब मीडियम इलास्टिक होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल. तो ट्रांसवर्स वेव जिस भी मीडियम से पास होंगे, that medium must possess property of elasticity, right? So similarly, on the similar lines, we can write properties of longitudinal wave. Exactly on the similar line. So first of all, a wave in which the particles of the medium vibrate parallel to the direction of propagation is called as longitudinal wave. Then characteristics, वो तो अभी आपने बोल दिया, particles of the medium are vibrating parallel to the direction of propagation, पहला प्रॉपर्टी था ये. दूसरा प्रॉपर्टी, जैसे आपने ट्रांसवर्स में पढ़ा था, whenever a transverse wave passes through a medium, the medium is divided into alternate crest and trough. यहाँ पे alternate compression and rarefactions. Good, right? तो जैसे आपने वहां बोला था, the distance between consecutive crest और trough wavelength, यहाँ पे consecutive compression और rarefaction, and नहीं, and is different than or. and मतलब होता है कि crest and trough का distance measure कर रहे हो, compression and rarefaction का कर रहे हो. We are saying crest to crest, trough to trough, compression to compression, rarefaction to rarefaction. Good. Then in transverse wave, who was taking energy from one point to other? Crest and trough. तो यहाँ पे कौन ले जाएगा? Compression and rarefaction. Simple. तो उसके बाद हमने देखा था कि as I told you, transverse wave can pass only through solids and surface of liquid. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. They can pass through solids, they can pass through liquids, they can pass through gases. This is real example. I am speaking, you are hearing me. It is because the compressions and rarefactions, they are traveling to you through air, which is a gas, right? Good. Then अगर sound wave transverse होता तो मैं कितना भी जोर से चिल्लाऊं, nothing doing, you cannot hear. Okay. Then उसके बाद हमने क्या बोला था कि जब एक मीडियम से ट्रांसवर्स वेव पास होगा तो प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम लाइक प्रेशर एंड डेंसिटी विल नॉट चेंज. यहाँ पे चेंज होता है, क्योंकि कंप्रेशन कैसे होगा? कंप्रेशन तो ऐसे ही हुआ था ना कि जब तक साउंड वेव नहीं था तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वेयर लाइक इक्विडिस्टेंट. जैसे ही साउंड वेव जनरेट हुआ तो पहले तो पार्टिकल्स पास में आए, फिर ये कंप्रेशन आगे गया, ये कंप्रेशन आगे गया तो रेयरफैक्शन जनरेट हुआ. मतलब व्हेन दिस compression is traveling forward, तो उसके बाद you will have rarefaction, मतलब distance is more now, right? इसका मतलब when longitudinal wave passes through a medium, it changes the properties of that medium. So
pressure and density will change, and in fact even temperature changes. तो हम देखेंगे बाद में टेम्परेचर भी चेंज होता है, it happens, but इतना ज्यादा नहीं होता कि you start feeling hot. Okay, so it changes to a little extent, वो देखेंगे हम लोग. Then जैसे हमने बात की थी पोलराइजेशन की, तो ट्रांसवर्स लाइट पोलराइज हो सकता है, मतलब हम वाइब्रेशंस को एक प्लेन में ला सकते हैं. यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है. You cannot. Why? Because the vibrations are only one directional, right? वहां पे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को परपेंडिकुलर बहुत सारे डायरेक्शंस होते हैं, लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को पैरेलल एक ही डायरेक्शन होता है, दैट इज द डायरेक्शन इटसेल्फ, राइट? तो यहाँ पे पोलराइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल ही नहीं है. एंड अगेन द सेम लास्ट characteristics property should follow. The medium through which longitudinal waves are passing must have property of elasticity. The medium should come back to its original form. Okay, good. So we end today's session here. तो कल से जो हम स्टार्ट करेंगे that is included in your syllabus, and that is हम कल से वेव का मैथमेटिकल फॉर्म स्टडी करेंगे. So how do you write this wave in mathematics? हम क्या हर बार ऐसा बोलते रहेंगे क्या, क्रेस्ट एंड ट्रफ? सो कौन सा वेव है? साइन वेव. तो हमको साइन वेव कॉस वेव के फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसको.